popular preacher Jack Hyles said something very beautiful. जाने माने प्रचारक जैक हाइल्स ने कुछ सुंदर कहा है। He said, failure is not disgrace उन्होंने कहा कि हार जो है वो शर्म की बात नहीं है, unless that you want to make the last chapter of your book. लेकिन अगर आप इस हार को अपने जीवन के या अपने जीवन की किताब के आखिर का अध्याय बना लेते हैं तो वो शर्मनाक बात हो The जाती most seasoned believers experience failure. और देखिए सबसे निपुण विश्वासी भी हार का सामना करता है। When you experience failure, जब हम हार का अनुभव करते हैं, it's not that you ask this question like, how did I allow it to happen? ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि मैंने कैसे होने दिया ये मेरे साथ। Instead, you need to ask this question, इसके बजाय ये प्रश्न पूछना है how हमको can I handle this failure? कि इस हार का सामना मैं किस तरह से करूं। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, anytime that we fail, जब कभी भी हम हार जाते we, हैं, असफल हो जाते हैं, we indulge in negative and discouraging thoughts. तो हम जो है नकारात्मक बातों में और निराश करने वाली बातों में अपने आप को लगा लेते But हैं। let me tell you, it does no good to us. लेकिन मैं आपसे कहूं कि ये विचार, ये बातें कुछ अच्छा नहीं करता हमारे जीवन This में। morning, let's open our Bibles to Joshua chapter 7, verse 5. इस सवेरे के वक्त आइए हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे यहोशू की किताब 7वां अध्याय 5वां वाक्य। Before we go there, let me just give you the brief background to it. वहां पे पढ़ने से पहले इसका बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ। Israelites, after spending 40 years in the wilderness, 40 साल रेगिस्तान में बिताने के बाद under the new leadership of Joshua, यहोशू के नए अगुवाईपन में entered the promised land. इजरायली लोग वादे के स्थान में प्रवेश करते हैं They entered the promised land with great pomp. और वादे के स्थान में बड़े ही उल्लास के साथ उन्होंने प्रवेश किया। A swelling Jordan was parted in two. और उनके सामने जो भरा पूरा यर्दन नदी था वो दो भागों में बट गया। The great obstacle called Jericho came crumbling down at their shout. और जब उन्होंने अपनी आवाजों को इकट्ठे उठाया तो यरीहो, ये दीवार जो है गिर गई। Israelites experienced resounding victory. और इजराइल ने बहुत ही रिसाउंडिंग जय का अनुभव किया। In the midst of such resounding victory, और ऐसे महान जय के बीचों बीच one man's sin एक व्यक्ति का पाप made the entire Israel to suffer. उसकी वजह से पूरा इजराइल जो है कष्ट में आ गया। When they experienced defeat against Ai, और जब उन्होंने आई नामक जगह के विरुद्ध में पराजय का सामना किया, a small insignificant city, एक बहुत ही छोटा सा शहर, there's something that they experienced in the spirit. और आत्मा में जो है उन्होंने कुछ अनुभव किया। That failure to have victory over Ai और क्योंकि वो आई पे या ए पे जय प्राप्त नहीं कर पाए, made the entire Israelite to crumble down. उसकी वजह से सारे इजरायली लोग मानो वो बहुत ही टूट से गए। Let's open our Bibles now to Joshua chapter 7 verse 5. आइए यहोशू की किताब में देखते हैं 7वां अध्याय और 5वां वाक्य। I'm going to read for us from the NKJ version. It says, and then the men of Ai struck down about 36 men, and they chased them from before the gate as far as Shebarim, and struck them down on the descent. Therefore the hearts of the people melted and became like water. तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारिम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। I want to once again read this last portion. It says, therefore the hearts of the people melted and became like water. ये आखिर के भाग को मैं पढ़ना चाहूंगा कि तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। I want us to understand something very important in this इस place. स्थान में कुछ महत्वपूर्ण बात को हम समझ लेंगे। Do you see a particular pattern repeat in this place? क्या आप देखते हैं कि एक शैली जो है दोहराया गया है इस जगह में? When we experience defeat, जब हम पराजय का सामना करते हैं, when we experience failure, जब हम हार का सामना करते हैं, even our hearts melt down and become like तो water. हमारा हृदय भी पिघलकर जल सा बन जाता है। We become very discouraged, हम बहुत निराश हो जाते हैं, defeated, हम परास्त live रहते in हैं, despair. हम जो है बहुत ही हताशमय रहते हैं। That is our initial response. और शुरुआत में ऐसा हमारे साथ होता That is है। the human response to every failure. और देखिए मानवीय प्रतिक्रिया ऐसी होती है जब हार होता है। But if that is the human response, लेकिन अगर ये मानवीय प्रतिक्रिया है what is God's response? तो परमेश्वर की प्रतिक्रिया क्या है? Now I want us to open our Bibles to the same chapter, verse 10 to 13. और आइए अब हम वही अध्याय में देखेंगे 10 से 13 वाक्य।
वाक्य। it gives us a very beautiful explanation, rather very beautiful mindset of God. यहाँ पे परमेश्वर के मन मन की पहचान यहाँ पे हमको होता है। Here God is speaking to Joshua. यहाँ पे परमेश्वर योशू से बात करते It हैं। says, so the Lord said to Joshua, get up. Why do you lie thus on your face? योशू से यहोवा ने कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। Further down in verse 11 he says that Israel has sinned and they also transgressed my covenant which I commanded them. For they have even taken some of the accursed things and have both stolen and deceived, and they have also put it among their own stuff. इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उनको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। God's response is, get up. Why are you groveling? देखिए परमेश्वर की प्रतिक्रिया ये थी, उठ खड़ा हो जा, तो क्यों इस भांति मुंह के बल गिरा हुआ है Our जमीन पर। God is a God of repentance and not of remorse. और देखिए हमारा परमेश्वर जो है वो पश्चाताप के परमेश्वर है। बुरा मानने वाले, बुरा सिर्फ हम बुरा मानते हैं, उस बुरे मानने वाली अवस्था में वो नहीं चाहते हैं कि हम रहें। Repentance comes from God and remorse comes from the pit of hell, that is from Satan. पश्चाताप जो है वो परमेश्वर से आता है और सिर्फ हमको जो बुरा लगना वो जो है दूसरी ओर से आता है, शैतान की ओर से। God doesn't want us to wallow in remorse. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम बुरे मानते बैठे रहे। God wants us to get up. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उठ खड़े हो जाएं। God is saying that if you failed, it's okay, now get up. परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप हार गए हो, ठीक है, अभी उठो। Don't lay down face down. और मुंह के बल जो है तुम गिरे पड़े मत रहो। Why is it so? ऐसा क्यों है? It's because holiness is a path, it's not a place. क्योंकि पवित्रता जो है वो एक रास्ता है, जगह नहीं है। When you go off the path, when you go off track, जब आप रास्ते से भटक जाते हैं, when you go off track of holiness, जब आप पवित्रता के रास्ते से भटक जाते हैं या हट जाते हैं, God wants you to come back to that holiness. परमेश्वर चाहते हैं कि हम वापस रास्ते पर आ जाएं। He पवित्रता doesn't के। want you to remain in unholiness. He doesn't want you to remain in sin and remorse. और देखिए वो नहीं चाहते हैं कि हम अपवित्रता में बने रहे, हम बुरा मानते हुए बैठे रहे। He says, confess your sins. वो कहते हैं कि अपने पापों का कबूली करो, अंगीकार करो। We can see that in 1 John chapter 1 verse 9. पहले यूहन्ना की किताब में हम देख सकते हैं पहला अध्याय और 9वां वाक्य। You and I are expected, you and I are called to confess. हमसे और आपसे ये अपेक्षा है कि हम कबूल करें अपने पापों को। Not conceal sin but confess sin. हमारे पापों को हम ढाके नहीं, लेकिन हमारे पापों को हम कबूल करें, उसका खुलासा करें। When we accept our failure, जब हम अपने हार को, परास्त को स्वीकारते हैं, when we accept and say that Lord I have failed, और जब हम परमेश्वर के सामने स्वीकारते हुए ये कहते हैं कि परमेश्वर हाँ मैं असफल हुआ हूँ, or when we say Lord I have sinned, हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया है, I have gone off track, हाँ परमेश्वर मैं भटक गया हूँ रास्ते I have से, left the path of holiness. मैंने पवित्रता के मार्ग को छोड़ा है, मैं हट गया हूँ। Lord, I no more conceal it, but I confess it before you. परमेश्वर मेरे पाप को मैं ढाकता नहीं हूँ, मेरे पाप का खुलासा, मैं पाप को खोल देता हूँ आपके सामने। Our God and your God. हमारा परमेश्वर आपका, मेरा परमेश्वर। Let me tell you, He will say, get up. Now I will give you once again success. और वो हमसे कहेंगे कि उठ जा, फिर एक बार मैं तुमको सफलता He दूंगा। doesn't want us to lay low. वो नहीं चाहते हैं कि हम नीचे बने हुए He रहे, wants us to come back again. वो चाहते हैं कि हम पुनः उठ जाए। Remember, a righteous man fails 7 times, but once again he will bounce back. और देखिए एक धर्मी जन जो है 7 बार गिरता है, लेकिन 7 बार जो है वो उछल कर खड़ा हो जाता That है। righteous man is none other than you and me. और देखिए वो धर्मी जन कौन है? आप और मैं हैं। Our righteousness is not in our own self-righteousness, but through that imputed righteousness of Jesus Christ. स्वयं की धार्मिकता नहीं, लेकिन जो धार्मिकता यीशु मसीह हमको देते हैं। When we stand in the righteousness that is been given to us, जब हम उस धार्मिकता में खड़े रहते हैं जो हमको दिया गया है, we stand in the right premise to acquire
establish our victory. तो हम जो है सही जगह में खड़े हो जाते हैं और हम जय को हमारे जीवन में देख सकते हैं। I do not know what kind of defeat that you're going through हम this नहीं morning. जानते हैं इस सवेरे के वक्त कौन से हार का सामना आप कर रहे हैं। God Almighty is saying to you, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, get up, son. उठो बेटा Stop being remorseful. और बुरा मानना बंद करो, Repent. पश्चाताप करो, मन Come फिराओ, back to me. मेरे पास वापस आ I will जाओ, give you success. मैं तुमको सफलता I दूंगा। believe that this particular word should encourage you. मेरा ये विश्वास है कि ये परमेश्वर का वचन ने आपको प्रोत्साहित करना है, Fill you with strength बल से आपको भर देना है, to go out and conquer all that God ever wants us to. ताकि आप जाकर जो है जय प्राप्त करें उन सारी बातों पर जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। With these things that I want us to go into the day इन बातों के साथ हम चाहते हैं कि हम दिन में जाएं freshly ताज़े रूप में, with a renewed energy एक नए ऊर्जा के साथ, in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम As से। you do it, जैसे आप ऐसा करते हैं, God is with you. परमेश्वर आपके साथ He है, will grant you success. वो आपको सफलता देंगे। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।